स्लाइड शो करने के बाद ना मेरी ओके so we were seeing the electronic configuration of different atoms. So we can see that जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कॉपर और क्रोमियम जो है where we have a different behavior. Now as we can see the copper and chromium are called as the anomalies. That is a different behavior in order to attain the extra stability. As we know that the half filled and completely filled orbitals are more stable. So as we can see over here, the chromium, जिसका atomic number is 24, जहाँ पे जो last orbit है जिसमें electronic expected configuration is 3d4 and 4s2. This is expected, but what is observed? The observed configuration is it tries to attain the stability by attaining half-filled orbitals. So observed configuration of chromium is 4s1 and 3d5. 3d5 and 4s1 is the electronic configuration of chromium, which is observed. That is one electron from 4s gets transferred into 3d. Similarly, we have copper, where copper has atomic number 29. Now, in this, the expected configuration is 3d9 4s2. But in order to attain the stability by half-filled and completely filled orbitals, therefore, one electron from 4s gets transferred into the 3d, and therefore, the observed configuration for copper is 3d10 4s1. Right? So this is a different behavior of chromium and copper in order to attain the stability. So therefore it is called as anomalies of copper and chromium. A 2-mark question can be or 3-mark question can be asked on explain what is the expected and observed configuration or what are the anomalies of copper and chromium can be asked. Now moving ahead, we are going to study further now how this bonding or how a chemical bond is formed, right? Now we have already studied the theory in order, the theory which explains how the formation of bonding take place, right? Which is called as the valence bond theory. Have you studied valence bond theory in your 11th or 12th standard, all of you? Yes, ma'am. So as we have already studied and we have some idea about it, now valence bond theory, it tells you about the bond formation, right? And it is completely, it tells you about how the covalent bond is formed. So let's revise some of the postulates of valence bond theory. Now, postulates of valence bond theory that is that a covalent bond is formed only when half-filled orbitals of two atoms overlap each other. हमें पता है कि covalent bond कैसे form होता है. Now, what is the difference covalent bond and ionic bond? Can anyone tell me? How is an ionic bond formed and how is a covalent bond formed? कोवैलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आयनिक पे बराबर. चार्जेस रहते हैं, उससे फॉर्म होता है बॉन्ड कैटायन हाँ, आयंस. चार्जेस कैसे फॉर्म होते हैं? मैम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से. राइट. तो अगर आयोनिक बॉन्ड में वन ऑफ देम विल कंप्लीटली गिव द इलेक्ट्रॉन, पूरा दे देता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं. एंड द अदर वन विच टेक्स अप कैसे नेगेटिव चार्ज, तो एक कंप्लीटली लॉस और या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, देन एन आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म. लेकिन व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड में सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करते हैं वो दोनों शेयर करते हैं, और शेयरिंग में जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. Because of the sharing of electrons takes place. So a covalent bond is formed only when half-filled orbitals of two atoms overlap each other. मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सेटिस्फाई होने के लिए, तो वो दोनों जो इसका हाफ फील्ड और इसका हाफ फील्ड कंबाइन होके ओवरलैप होने के बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. Now each overlapping atomic orbital
should contain an unpaired electron with opposite spin. What is important that it should have an, अगर हमको bonding करनी है तो it should have an opposite spin. For example, अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1. हाइड्रोजन, हाँ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s 1s1, ये एक हाइड्रोजन एटम है. Similarly, if I have another hydrogen atom which is having a 1s orbital, 1s orbital is spherical in shape, है ना? So what will happen? We have again 1s1. So in order to have covalent bonding, what is going to happen? How we show for the hydrogen? When we show for the hydrogen in place of bonding, suppose this is one electron of hydrogen and this is other electron of hydrogen, what will happen? They both will overlap and form a bond. Okay, if I show this way, then both will overlap, both orbitals, electrons will overlap and form a bond. One single bond is formed by sharing of electrons. So each overlapping atomic orbital should contain an unpaired electron. It should have one unpaired electron. This should have one unpaired electron and the other unpaired electron with opposite spin. Important, with opposite spin, then the overlapping will take place. So overlapping atomic orbitals must have nearly same and comparable energies. तो ये जो फ्रेंडशिप होती है, जैसे हम ना फ्रेंडशिप होती है तो लाइक माइंडेड पीपल से फ्रेंडशिप जनरली होती है, तो यहाँ पे भी दोनों एटम्स को अगर कंबाइन होना है बॉन्डिंग के लिए, दे शुड हैव कंपैरेबल एनर्जी, which is one of the postulate of VBT theory. नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर न्यूट्रलाइज. तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंबाइन करते हैं, दे शुड हैव इलेक्ट्रॉन स्पिन विच आर ऑपोजिट स्पिन. और जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो दोनों स्पिन्स जो है वो न्यूट्रलाइज होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप ऑन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल तो दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप हो जाते हैं एंड इट फॉर्म्स अ बॉन्ड. और ये ओवरलैपिंग उन्हीं के साथ पॉसिबल है जिनमें कंपैरेबल सिमिलर एनर्जीज होते हैं. So as we can see on this slide, we have two types of bonds generally are formed, sigma bond and pi bond. So when we have a covalent bonding, जब भी एक covalent bond form होता है, that is because of the sigma bond obtained. So as we can see over here, और ये sigma bond जो है किस तरह से bonding form करता है, this इस तरह से, right? This is called as the head-on पोजिशन, एक्सियल ओवरलैप. तो यहाँ का एक ऑर्बिटल यहाँ के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और जिस जगह पे इट कंबाइन ओवरलैप होता है, तो दैट one electron from this atom, the one electron from the other atom combine together form a pairing of electron and therefore a sigma bond is formed. When there is a lateral, अगर हमारे पास जो ऑर्बिटल है it is in the lateral position, lateral position में one electron from this p orbital, one electron from the other p orbital combine to form a pi bond, right? So this is the basic, we know sigma bond and the pi bond. Now valence bond theory जो हमने पढ़ा कि it is generally formation of bonding, covalent bonding because of the sharing of electrons. Now valence bond theory में कुछ कुछ कमियां थी जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए. Now क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए? Valence bond theory fails to answer certain questions like helium molecule does not exist. Like we have oxygen molecule is there, but helium molecule does not exist. We write He, atom. Now why the molecule does not exist? This can't be answered by the valence bond theory. Or the other question is why oxygen is paramagnetic in nature. O2 है, O2 के दो atoms combine to form an oxygen, but still it is paramagnetic. So these questions were in mind and the answers were not given or not possible because of the VBT theory. So therefore, in 1932,
two scientists, that is Hood and Mulliken. The Mulliken theory is generally considered to be the MOT theory. So in 1932, F. Hood and R. S. Mulliken came up with a new theory which is called as the molecular orbital theory, right? तो ये क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि हीलियम जो है why it does not exist, हीलियम मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं होता है, ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये क्वेश्चंस को स्टडी आंसर करने के लिए बहुत सारी रिसर्च आगे प्रोसीड की ये दो साइंटिस्ट ने, मूलिकन्स ने, और ये क्वेश्चन के आंसर तक हम दो साइंटिस्ट पहुंचे। तो इसके लिए उन्हें नई थ्योरी प्रपोज की, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट? नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT जो ज्यादा पॉपुलर है? अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, individual atoms combine to form molecular orbitals as the electrons of an atom are present in various atomic orbitals and are associated with several nuclei. इसका मतलब है ये थियरी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके एक नया जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज वेयर दैट एरिया वेयर द चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। एज वी कैन सी इन दिस स्लाइड, molecular orbital theory, a more accurate theory than valence bond theory, is molecular orbital theory. In molecular orbital theory, we imagine that electronic orbitals cover the whole molecule and are not localized on one atom. These diagrams show the difference between valence bond theory and molecular orbital theory when considering the orbitals of benzene. So we have already studied the structure of benzene, right? Ketulate structure हमने पढ़ा, फिर molecular orbital structure पढ़ा था, yes or no, if you could remember. So as we can see the comparison between the two, valence bond theory क्या बताता है? For example, in benzene we have 3 sets of localized pi bond. तो वो VBT theory कहता है कि जब atomic orbitals overlap होते हैं तो उसी जगह पे overlap हो रहे हैं, राइट? तो सिग्मा बॉन्ड्स जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज शोन एज द स्टिक फॉर्म। तो ये जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द VBT वो उसी एटम के ऊपर रहेगा, राइट? बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताता है? ऑर्बिटल्स आर स्प्रेड ओवर द होल मॉलिक्यूल, so the chances of finding the electron is overall over the whole molecule. So it is shown in the ring structure. जैसे हमने pyrrole ring, pyrrole देखा है, structure of pyrrole देखा हमने aromaticity में, even we have seen the benzene में जो pz orbitals होते हैं, the extra pz orbitals होते हैं, सारे 6 carbon atoms का जो क्या form करता है? It forms a cloud, it forms a molecular orbital cloud, right? So where the chances of electrons, probability of electrons is maximum. Right? Now, in order to address the molecular orbital theory, even it has to be considered that an electron is nothing but it has a dual nature. It has a dual nature का मतलब है it behaves as a particle or it behaves as a wave. Right? तो ये वेव की तरह है, तो वेव में हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन अज्यूम नहीं कर सकते कि फिक्स पोजीशन है, राइट? इट इज मूविंग, तो वेव में समवेयर वी कैन फाइंड, अगर जैसे समुद्र हम देखते हैं, समुद्र में जो वेव्स आते हैं, तो वेव्स में जो फिश मिलने के चांसेस है, फिशेस, राइट? इन द वेव वी कैन फाइंड एनीवेयर द फिश कैन बी देयर, राइट? So we consider that this electron can be present anywhere in the wave, right? I think all of you would have studied this in the physics also, right? So we know that the electrons have a dual character. Dual character मतलब दो रूप होते हैं electrons के, and they are considered either as particle or as wave, because an electron in an atom may therefore be described as occupying an atomic orbital or described by a wave function. अब ये wave function है, उसको किस तरह से denote करते हैं? Can anybody tell me?
Yes. Okay. ये जो wave function होता है, as we say, the electron has a dual behavior. It behaves as a particle and it behaves as a wave. तो ये जो wave function है, इसको describe किया है by the quantity that is called as the psi. Okay. तो हमारा अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहते हैं psi a. It has no physical meaning, but psi tells you about the amplitude of that wave. What is the amplitude of that wave, right? और ये जो wave functions हम denote करते हैं by two signs. The wave functions have two phases. One is the plus positive and one is the minus, right? तो हमें ये देख रहा है कि ये जो wave होता है, it will cause an interference. Now interference किस तरह से cause होता है? Anyone can tell me what is the interference caused by a wave? जब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं, When two waves overlap, that time the interference is created. Okay, very good. So when the two waves overlap and they combine together, because of which what is going to increase? As you can see in this picture, wave interference में this is my wave 1. एक पहला wave है और ये दूसरा wave है. दोनों की direction same है. तो ये दो जो है wave क्या होंगे? वो combine होंगे. Combine होने की वजह से क्या increase हो रहा है आपको? Wave 1 plus wave 2. What is increasing? Amplitude. Amplitude. तो क्या होगा? ये amplitude increase हो रहा है दोनों wave जब combine होते हैं. Where again the probability of finding the electron is maximum over here. And therefore this is called as what interference? It is called as the constructive interference. जब दो wave similar wave जब combine होते हैं, it will cause an constructive interference. But if we have one wave is in this direction and the other wave is in the opposite direction, will this two waves cause constructive interference? No. No. तो ये जो है प्लस अगर हम इसको डिनोट करते हैं, ये जो है हम माइनस डिनोट करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल नॉट कंबाइन and what we'll have, we will have no amplitude increasing and it will create a destructive interference. तो जब हमारे पास दो waves आते हैं तो वो दो waves के दो behavior रहेंगे. कौन से दो behavior रहेंगे? बताइए कौन से दो behavior रहेंगे? अगर दो waves है, दो इंसान है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. Yes, तो ma'am. दो इंसान है, नए नए कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, तो दो फ्रेंड्स, दो लोग हैं, तो दो लोग में दो चीजें हो सकती है. फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर फ्रेंडशिप नहीं हो सकती. तो चांसेस दोनों की है या नहीं है? दोनों के हैं. दोनों के हैं. मतलब फ्रेंडशिप हो भी सकती है दोनों में, या फ्रेंडशिप हाय हेलो करके उनमें केमिस्ट्री नहीं मैच होती है, वो जुदा हो जाए. तो वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड वन इज डिस्ट्रक्टिव. लेकिन हमें जो जाना है वो दोनों चीजें लेके जाना है कि आइदर ये दोनों में फ्रेंडशिप हो सकती है या फिर फ्रेंडशिप नहीं हो सकती. तो हम पहले ही बता सकते हैं क्या कि इसमें फ्रेंडशिप होगी या नहीं होगी? No. It depends upon the how the wave is proceeding, किस तरह के waves है, right? So this theory of the wave function is put forward in order to define the molecular orbital theory. So molecular orbital theory goes with the theory is that it the electron behaves as a wave, and therefore जब ये atomic orbitals जब overlap होते हैं तो जितनी ज्यादा overlapping ज्यादा होगी, maximum overlapping होगी, उतना क्या होगा, उसकी strength जो है increase होगी. और ये जब atomic orbitals combine करते हैं तो एक नया orbital form होता है which is called as a molecular orbital. So new orbitals which are formed are called as the molecular orbitals.
The atomic orbitals must be of comparable energies and proper symmetry. तो जैसे हमने कहा कि दोनों लोग हैं, उनमें फ्रेंडशिप होना है, तो फ्रेंडशिप होने के लिए कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए, हमारी लाइकिंग सेम होती है, हमारा हमारा इंटरेस्ट सेम होता है, तो ही हम फ्रेंड्स बनते हैं, है ना। अगर हमारी लाइकिंग सेम नहीं रहती है, राइट, देन क्या होता है, तो फ्रेंडशिप डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिमिलरली अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स बनने हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो सिमिलर एनर्जीज होनी चाहिए and should have a proper symmetry also, then only the overlapping can take place. This is one condition. Second, silent features क्या है, MOT is influenced by two or more nuclei, thus it is polycentric. तो ये MOT में जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिनिमम टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो जिसमें अगर दो एटम्स कंबाइन हो रहे तो दो न्यूक्लियाई होंगे, थ्री एटम्स कंबाइन हो रहे तो थ्री न्यूक्लियाइज होंगे। सो देयरफॉर अगर दो और दो से ज्यादा न्यूक्लियाई कंबाइन होके अगर एमओटी बन रहा है, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चौथा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी। जैसे वीबीटी में कहा था कि खाली कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, ओनली ओवरलैपिंग होता है, लेकिन वो दोनों इंडिविजुअल आइडेंटिटी सेम रहती है। लेकिन एमओटी थियोरी क्या कहते हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जब वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने की वजह से एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, एंड देयरफॉर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी। पांचवा पॉइंट है, नंबर ऑफ एमोस फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हमारे पास जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब अगर मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 2. कैसे होंगे हम आगे देखेंगे। अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो उसके भी चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, राइट। तो ये अभी फिलहाल इतना याद रखो, जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। देन ये जो एमोस है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर आल्सो डिटरमाइंड बाय क्वांटम नंबर। ओके, तो ये जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेंगे, इसको भी क्वांटम नंबर से ही डिटरमाइन किया जाता है। और जो हम ने चार क्वांटम नंबर्स फॉलो किए हैं, वो भी चार क्वांटम नंबर्स ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है वो भी इस तरह से प्लेस होते हैं। ओके, एंड they are further designated as sigma, sigma bond, pi bond and delta. तो सिग्मा पाई एंड डेल्टा की तरह जो है हमें जो एनर्जी लेवल्स हम प्लेस किया जाएगा, जहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होके हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है, इट इज इन अकॉर्डेंस विथ द प्रिंसिपल दैट इज अफॉल प्रिंसिपल्स, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल्स एंड हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हम बनाएंगे, राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होमो और हेट्रो मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इट इज गवर्न्ड बाय द थ्री प्रिंसिपल, दैट इज अवॉय प्रिंसिपल, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लोअर एनर्जी फिल होगा फिर हायर एनर्जी जाएगा। जैसे हमको बिल्डिंग में अगर चलना है, बिल्डिंग में चढ़ना होगा, तो हम we will go in the first floor, then second floor and third floor. Directly you can't go to the fifth floor. तो इसी तरह से the filling of the electrons will take place from 1s, then 2s, 2p and so on. Next one is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle क्या बताता है? That how the filling of the electrons takes place. And the last one is the Hans rule of maximum multiplicity. ये तीनों rules जो है ये follow किया जाता है। And the last one is that molecular orbitals are formed by linear combination of atomic orbitals. तो ये जो molecular orbitals है, they are filled by the theory which is called as LCAO. Now what is LCAO? LCAO का full form है linear combination of atomic orbitals.
So it is governed by the method which is called as a linear combination of atomic orbitals. How the atomic orbitals of two or more atoms, how they combine and how the filling of electrons take place is governed by LCAO method. Now, as we were seeing about the wave, right? Now we have जो हम orbitals कहते हैं, suppose I have one orbital of one atom and one is orbital of another atom. What will happen? They will combine together, overlap to form a molecular orbital. So suppose if I have psi1 s is one atomic orbital and psi1s is another atomic orbital. तो ये जो दो वेव है, ये वेव में आइदर एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है. इसका मतलब है आइदर द वेव विल कंबाइन टू गिव यू अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये हमने देखा कि वेव में दो प्रोबेबिलिटी होती है, आइदर वो कंस्ट्रक्टिव करेगा या डिस्ट्रक्टिव करेगा. सिमिलरली ये जो ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में भी दो प्रोबेबिलिटी होंगी. आइदर this atomic orbitals will combine to form a molecular orbital and that is called as the bonding molecular orbital, or there is a chances that it will repel and will form a non-bonding atomic orbital. दो चांसेस. तो जब अगर एडिशन होता है, ये जो 1s और 1s, ये जब एडिशन होता है तो हमने देखा क्या होगा, एम्पलीट्यूड है. तो ये psi1s वन एटम है, psi1s अनदर एटम, दोनों के जो है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है. तो प्लस प्लस का एक चांसेस क्या हो सकता है, ये दोनों कंबाइन होंगे psi1s plus psi1s and they will form a new molecular orbital and it will be called as sigma s molecular orbital, which is also called as bonding molecular orbital. Okay, this is the bonding molecular orbital. This is one condition, one probability. The second one, if it is in the opposite way, plus or minus, इस तरह से है, ये plus है wave और ये minus wave है, तो यहाँ पे हम क्या डिनोट करेंगे, psi1s minus psi1s, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट है, वेव जो है वो ऑपोजिट है, प्लस एंड माइनस. तो इन दिस केस they will not combine to form a molecular orbital. Therefore, it is written as sigma star s, sigma star s mo. तो ये molecular orbital है वो sigma star s है and therefore it is a non-bonding molecular orbital. मतलब यहाँ पे bond formation नहीं हो पा रहा है because it is having plus, it is denoted as plus and it is denoted as minus, right? So this is called as the non-bonding या sigma star molecular orbital and ये दोनों orbitals ये जो है इसके बीच में जो है it is called as the nodal plane. Now what do you understand by nodal plane? Nodal plane is that plane where the probability of finding the electron is 0. यहाँ पे कोई हमें, ये nodal plane है, यहाँ पे कोई मुझे मिलेगा इलेक्ट्रॉन? Yes? No. So this area where there is no electron, chances of finding an electron is 0. That is called as the nodal plane. So here we have to understand that when two atomic orbitals are present, there are two probabilities that it can form bonding atomic orbitals or it can form non-bonding atomic orbitals. When we have bonding atomic orbitals, then it is in a wave function, it is written as psi1s plus psi1s. ठीक है. Now ये बताइए मुझे for non-bonding how it is written? If they are non-bonding atomic orbitals, then in a wave function how it is written? sigma Anyone? s star. सिग्मा स्टार एस. ठीक है, ये पूछ रही हूँ एज अ वेव फंक्शन हम उसको किस तरह से लिखेंगे? psi1s minus psi1s. बराबर,
psi1s minus psi1s, क्योंकि माइनस हो रहा है, एंटी बॉन्ड माइनस हो रहा है, तो ये माइनस हो रहा है तो इसको कहेंगे हम नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये वेव फंक्शन कंबाइन होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज सिग्मा एंड सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ तो ये जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इट इज डन बाय LCAO मेथड। अब ये किस तरह से प्लेस किया जाता है मैं आपको ये समझा दूं। नाउ इन दिस वी आर शोइंग दिस एरिया, ये जो एरिया होता है दिस साइड, इट इज एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, राइट। तो वन एटम, जो भी एक एटम, बिकॉज मॉलिक्यूल हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मे बी H2 मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट एटम रहेगा, जो भी हमारा एटम है, राइट, ये फर्स्ट एटम है, पहला एटम है, और दूसरा जो है दिस इज द सेकेंड वन, ओके, खाली इतना ही लिखती हूँ, आई कुड नॉट राइट इट डाउन प्रॉपर्ली। So this is the first and this is the second orbital. Now psi A is the wave function of first atom, psi B is the wave function of another atom. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम ऐसे बॉक्स, जनरली बॉक्स में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो तो क्या इंसान की जैसा तो नहीं है ना कि हम इसको हम ठहरा सकते हैं इन दिस बॉक्स, राइट, वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस। So we have a psi A where we have one electron. Now in this atomic orbital, maximum 2 electrons can be occupied, as we can say in the molecular orbital. Atomic orbital we have 1 electron here, and this atomic orbital will have 1 electron here, but with the opposite spin, right? मतलब जैसे यहाँ पे एक एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, ये दूसरा एटम है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करने के लिए ये कोशिश करेंगे, जहां पे ये वन दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ psi A and another electron of psi B will combine together. Now कॉम्बिनेशन में हमें दो चांसेस है, क्या करेंगे, वो आइदर बॉन्डिंग क्रिएट करेगा या नॉन बॉन्डिंग क्रिएट होगा, राइट। बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग को हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्रिएट मतलब डिस्क्राइब करते हैं। तो दिस वे जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद इट में गो टू अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल वेयर द चांसेस आर psi A plus psi B. So we have this orbital psi A and psi B will form a sigma bond. तो ये जो है हम इस तरह से उसको, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है, दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, तो उसकी एनर्जी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। कम होने की वजह से हम उसको क्या करते हैं, लोअर लेवल को एड्रेस करते हैं, मतलब ये एरो से एटॉमिक ऑर्बिटल से हम इसको नीचे ड्रॉ करते हैं या नीचे डेसिग्नेट करते हैं। जैसे इसलिए ये जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम की ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनने के बाद वो स्टेबल हो जाता है, तो इसके लिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज्यादा होती है, बिकॉज दे रिपल ईच अदर, so that is why it is placed at a higher side, right? So this is sigma psi A plus psi B. This sigma psi A plus psi B is called as bonding orbital with lower energy than that of the atomic orbital. Atomic orbital से bonding orbital की एनर्जी जो होती है वो लोअर होती है, किसमें, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स बैठ जा रहे हैं, whereas this one psi star
is equal to psi A minus psi B is called as molecular orbitals, and this non-bonding orbitals are called as anti-bonding orbitals, and they have higher energy than that of the atomic orbital. तो ये atomic orbital से anti-bonding orbital में higher energies present होती. So again I'll repeat what this LCO method explains. LCO method explains the representation of atomic orbitals combined to form the molecular orbital, where it is represented by this diagram. One side is the atomic orbital of one atom, the other side is the atomic orbital of another atom. Suppose I designate that first atom is psi A, तो psi A को हमने यहाँ पे represent कर रहे हैं atomic orbital, psi B को राइट साइड पे डिनोट कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल. साई ए में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, साई बी में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों के जो डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट है. जब ऑपोजिट होगा, एंटी क्लॉक, वन इज क्लॉकवाइज वन इज एंटी क्लॉकवाइज, देन ओनली दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव यू और टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज psi A plus psi B. ये psi A plus psi B आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग ऑर्बिटल. इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द सिग्मा बॉन्ड. Now there is one more orbital which is called as the anti-bonding orbital. This anti-bonding orbital will have higher energy than that of the atomic orbital, and therefore it is represented as psi A minus psi B, right? And it is represented as sigma star. It is called as the sigma star, is called as the anti-bonding orbital. So this is the basic रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट शेल, क्योंकि हम खाली 1s की बात कर रहे हैं, तो 1s के बाद 2p रहेगा और भी हायर हायर जो लेवल्स रहेंगे वो हम आगे देखेंगे. तो जैसे हम कह रहे थे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज बॉन्डिंग एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So what do you understand by bonding molecular orbitals? Addition of two atomic orbitals leads to the probability of finding an electron between the atoms, right? जब दो atomic orbitals combine होते हैं तो ये addition होता है, और addition होने की वजह से ये वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की चांसेस ज्यादा बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ती है, right? That is called as the molecular orbital which is bonded, and that is called as a bonding. मैम हाँ जी, मैम ब्रेक दो ना. अभी चाहिए यस Yes, मैम. ma'am. ये कंप्लीट करती हूँ और फिर ब्रेक दे, या अभी दूँ? मैम अभी दे दो. अच्छा ठीक है. कितना बजे है अभी? 11:05 हुए हैं मेरी घड़ी में. 5 मिनट का. मैम 10. 10 10 minutes. मिनट. Yes, ma'am. 11:15 को आ जाइए और ऐसे ही रहिएगा, आपने खाली रहते रहिए. ओके मैम 11:15. ओके, आना Thank जरूर you. देखते. यस मैम. ओके.
the molecular orbitals form two types of molecular orbitals. One is bonding molecular orbitals and one is anti-bonding molecular orbitals. Bonding or molecular orbitals में addition of two atomic orbitals होता है, जहाँ पे दो atomic orbitals combine हो जाते हैं. For example, as you can see over here, we have 1s and 1s of one atom and 1s of another atom. So what will happen over here? This 1s of one atom and the 1s of another atom, नीचे का एक्चुअली मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, दोनों कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिग्मा molecular orbital. This sigma molecular orbital is called as the bonding molecular orbital. The downward one, the A position. Same way, what is anti-bonding molecular orbital? Suppose if I have 1s atomic orbital of one atom and 1s atomic orbital of another atom, they if there is opposite sign, then the subtraction will take place, and therefore it will cause sigma star molecular orbital, which is called as anti-bonding molecular orbital. And this anti-bonding molecular orbital will not merge together, and therefore the boundary between the two atomic orbitals where the probability of finding the electron is 0 is called as the nodal plate. It is called as a nodal plate. तो यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है, here we have this shows the representation of the atomic orbitals. Suppose if we have one atomic orbital, 1s orbital has one electron, 1s atomic orbital has another one electron. These two will combine together to form sigma bonding atomic orbital, which is called as 1s, or it can combine together to form sigma anti-bonding molecular orbital, which is called as sigma star 1s. So let's see now how the molecular orbital diagram of hydrogen, अगर हमें molecular orbital diagram of hydrogen molecule का बनाना है तो किस तरह उसको represent करें. Now as we can see, जैसे मैंने कहा आपको कि one side is the atomic orbital of hydrogen and this side is the atomic orbital of another hydrogen. Then we have one electron over here, even this should be shown with the one electron with the opposite spin. Then these two electrons will combine together to form a molecular orbital. So one electron from one hydrogen atom, one electron from another hydrogen atom combine together to form a molecular orbital. So this molecular orbital will have, it is denoted as what? Can anybody tell me? This molecular orbital will be represented as what? Sigma. Very good. Sigma 1s. It will be represented as sigma 1s. And we do not have any electron which is left out for antibonding. So this will be empty. The sigma star, which is the antibonding molecular orbital, we do not have any electron. So this is the molecular orbital diagram for hydrogen. All of you, please draw this diagram in your notebook. I hope you are noting the points whatever is to do. So these diagrams, molecular orbital diagrams are very, very important from this chapter. As further, we can see that 5 marks for sure question comes in the examination. So all of you, please draw this diagram in your notebook. और हो जाने के बाद बताओ हो गया. अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तो आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही खाली आप वीडियो लेक्चर के जैसा अगर सुनेंगे तो आप कुछ भी नहीं आएगा. So how is the molecular orbital diagram representation of hydrogen is carried out? हो गया सबका? No, ma'am. Okay, are you doing it? Yes, ma'am. Draw कर. ठीक है, ड्रॉ कीजिएगा. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है ना, ये एरो,
तो एरो हम उसको सर्कल में भी दिखाते हैं। जो ऑर्बिटल है ना 1s का कैसे स्फेरिकल शेप में रहता है, तो हम उसको ऐसे सर्कल में भी दिखा सकते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं। एंड यू शुड शो विद द ऑपोजिट स्पिन। Please draw this diagram of hydrogen in your notebook. और एक पूछना था मुझे, 2 घंटा ना ये टॉपिक कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा, तो अभी कभी ले सकती हूँ मैं? एनी सजेशन? इवनिंग टाइम कब ले सकूंगी मैं? मैम इवनिंग मैम में आज कभी तो शायद से बी है। आज है क्या? हाँ बोले तो थे सर ने कल। होता है। नहीं, आज 4 o'clock तो मुझे पॉसिबल नहीं होगा। शाम को किसी को है पॉसिबल 7 to 9 ऐसा? असाइनमेंट्स मैम 6 बजे तक लेक्चर रहता है जी के। नहीं 6 बजे नहीं, मैं एक्चुअली बाहर जा रही हूँ अभी हाफ डे में। संडे को 2 घंटा। मैम वही मैम संडे नहीं, मैम सैटरडे को ले लो। संडे नहीं मैम, कल तो कॉलेज आना है ना। हाँ सैटरडे को तो विजिट है ना हमारा। और इवनिंग में मैम। सैटरडे इवनिंग में आप लोग थक जाओगे ना, जो भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब वो थक जाएंगे। देखते हैं, ठीक है। अब ड्रॉ कीजिए। हो गया सभी का? कौन था? मैम संडे मत लो। संडे को रखूं? नो मैम, संडे को नहीं। नो मैम संडे को नहीं। संडे को तुम्हें पता है कोई एक दिन बाकी के क्लास में संडे को भी लेक्चर्स होते हैं केमिस्ट्री के, पता है आप लोगों को? मैम हम लोगों का सिलेबस पीछे चल रहा होगा, नो मैम। हमारा तो भी आगे है ना। हाँ, अच्छा, तो हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना फिर। नो मैम संडे को नहीं लेंगे। एक ही दिन ही छुट्टी मिलती है प्लीज। मैम एक ही तो संडे मिलता है हफ्ते में। अच्छा ठीक है। वो भी असाइनमेंट कंप्लीट करने चल जाता है मैम संडे। हाँ क्या करें, थोड़ी मेहनत करो, एक सेमेस्टर फिर आगे आसान होगी चीजें। चलो हो गया आप लोगों का सबका, हम प्रोसीड करते हैं आगे। हो गया सभी का? अरे छोटा सा तो डायग्राम है, इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को? Done. मैम। मैम क्या करना है इसमें? क्या करना है मतलब जो सामने दिख रहा है वैसे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है। हाँ चलो हम आगे बढ़ते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी मैं, तो हमारा और स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जा। हाँ ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन में क्या हम पॉइंट्स लिखेंगे, ये हम देख रहे हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कौन सा ओवरलैप होता है बताइए मुझे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन। एडिशन। तो इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मेरा पहला पॉइंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं एडिशन। तो एडिशन ओवरलैपिंग होती है। सेम वे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग होता है। अगर मुझे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन की तरह एक्सप्रेस करना है, तो उससे कहते हैं हम साई MO इज इक्वल टू साई A प्लस साई B, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है। सिमिलरली अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को वेव फंक्शन में अगर एक्सप्रेस करना है, तो इट इज रिटन एज साई स्टार इज इक्वल टू साई A माइनस साई B. It forms takes place when the lobes of atomic orbitals have same sign. ये भी हम समझ सकते हैं कि दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो वो एटम्स जो है वो कंबाइन करें which have the same signs will overlap and will form a molecular orbital. लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होता है? एनीवन?
सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होता है। डिफरेंट साइंस वाले जब ऑर्बिटल्स होते हैं where they repel each other and therefore the anti-bonding molecular orbitals are obtained. Bonding orbitals में the energy of bonding molecular orbital is lower than that of the atomic orbitals from which it is formed. तो जब bonding और molecular orbital जब form होता है तो उसकी energy जो है individual atomic orbital से कम होती है, whereas the energy of the energy of anti-bonding molecular orbitals is higher than that of the atomic orbitals from which it is formed. जो anti bonding molecular orbital जो form होता है, right, it is having higher energy as compared to the atomic orbitals from which it is formed. The electron density is high in the region between the nuclei of bonded atoms. तो जहाँ पे हमारा bonding molecular orbital जब combine होके form होता है तो उसमें electron density, the probability of finding the electron is higher in this region, whereas the electron density is low in the region between the nuclei of bonded atoms. Every electron in bonding molecular orbital contributes towards the attractive forces. तो जहाँ पे bonding molecular orbital form होता है उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो participate होता है molecular orbital बनाने में, whereas every electron in anti-bonding contributes towards repulsive forces. तो यहाँ पे opposite signs है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट में रिपल्शन में एड कंट्रीब्यूट करता है. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स? तो ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइनिंग के कंडीशंस क्या है? तो पहले क्या है कंडीशंस? द एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी. तो ये जो है जैसे फ्रेंडशिप होती है, लाइक माइंडेड लोगों में फ्रेंडशिप होती है, तो यहाँ पे भी सब सिमिलर एनर्जीज होती है, वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल वी कैन सी 1s orbital can combine with another 1s orbital but not with 2s orbital. तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है. 1s will combine with 1s only, 2s will combine with 2s only, not with any other. जैसे एरिया रहता है ना अपना, ये फर्स्ट फ्लोर का एरिया, ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर ही है जो है वो कंबाइन हो सकते हैं. सेकंड फ्लोर ही कंबाइन हो सकते हैं कि उनकी एनर्जी ज्यादा है. कम एनर्जी वाला और लोअर एनर्जी हायर एनर्जी वाला कंबाइन नहीं हो सकते, है ना. जैसे अमीर है और बहुत गरीब है, और गरीब और अमीर की फ्रेंडशिप तो बहुत कम दिखाई देती है. जनरली सेम क्लास के पीपल सेम जगह पे रहते हैं और उनकी फ्रेंडशिप भी उसी तरह से होती है. तो इट शुड हैव द सेम एनर्जी लेवल, ऑल्सो इट शुड हैव द सेम सिमेट्री. नाउ सिमेट्री जो है, एस ऑर्बिटल तो हमें पता है स्फेरिकल इन शेप होता है, लेकिन जब पी ऑर्बिटल होता है तो पी ऑर्बिटल में हमारे पास सिमेट्री है, दैट इज इट वी हैव पी एक्स, वी हैव पी वाई, पी जेड. तो जब ये ओवरलैप होता है तो ओनली px will combine with px, py will combine with py and pz will combine with pz, क्योंकि दोनों की सिमेट्री है वो सेम होनी चाहिए. That is, it will have same symmetry. For example, 2pz orbital of one atom combines with 2pz orbital of another atom. But it is not possible that 2px will combine with 2py because of their different symmetry. Symmetries अलग है, दोनों की सिमेट्री सेम रहेगी तो ही ओवरलैपिंग होगी p ऑर्बिटल्स में स्पेशल. तीसरी पॉइंट जो है, इट मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. सबसे जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उसमें उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी. ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन होना है तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. पहली चीज है सिमिलर एनर्जी, दूसरी चीज है सेम सिमेट्री, और तीसरी चीज है मैक्सिमम ओवरलैप. राइट. तो इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, मतलब कौन से ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन हो सकते हैं और उसमें किस तरह की सिमेट्री होनी चाहिए और किस तरह की एनर्जीज होनी चाहिए. नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल है कैसे कंबाइन होगा? आइदर 1s विद 1s हो सकता है या 2s विद 2s हो सकता है.
तो ये जो s ऑर्बिटल्स है, this s orbital will form either bonding or it can form anti-bonding. ये तो हमें अभी तक सीखा है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन करेंगे, सपोज ये दो ऑर्बिटल्स है कंबाइन करेंगे, इट कैन फॉर्म बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ये दो इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिटल्स में है, दे कैन कंबाइन टू फॉर्म एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड दिस प्लेन इज कॉल्ड एज द नोडल प्लेन. तो एस एस में क्या कॉम्बिनेशन है, 1s with 1s और 2s with 2s. नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है s एंड p. s एंड p में क्या कॉम्बिनेशन है, अभी s जो है मेरा s ऑर्बिटल विच इज अ स्फेरिकल इन शेप, और ये मेरे पास px ऑर्बिटल. px ऑर्बिटल कौन सा शेप है, yes students, I hope you are there with me. डम्बल शेप. डम्बल शेप. तो ये डम्बल शेप में वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड वन इज नेगेटिव. तो ये डम्बल शेप का जब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लोब और स्फेरिकल का पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास में आ जाते हैं, then what will have, it will form an orbital and therefore we will have sigma bonding molecular orbital where we can find the electron over here which will have the lower energy. Same way अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है और px ऑर्बिटल, लेकिन the s ऑर्बिटल is having a negative charge and px का पॉजिटिव अगर आता है तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव will repel and therefore it will form sigma star anti-bonding molecular orbital. This anti-bonding molecular orbital will have higher energy. So the overlap of an s orbital with a p orbital also gives a bonding molecular orbital and anti-bonding orbital. तो s s से दो कॉम्बिनेशन है, 1s 1s 2s 2s. s एंड p में अगर इस तरह से हेड ऑन पोजीशन में, दिस इज कॉल्ड एज द हेड ऑन पोजीशन, जिसमें px ऑर्बिटल जो हेड ऑन पोजीशन में है s के साथ कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म sp ऑर्बिटल. दूसरा चीज है which is called as the axial overlapping. Okay, now axial overlapping या head on मतलब सर टकरा रहे ना दोनों के, that is called as a head on overlapping. Now head on overlapping में we can have a pp overlapping. Now what is the pp overlapping, as we can see, अगर मेरे पास px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल का प्लस माइनस और ये px ऑर्बिटल का प्लस और माइनस सामने आ जाता है, ये तो प्लस प्लस होता है, ये ओवरलैप करेगा, प्लस प्लस ओवरलैप करेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ हेड ऑन ओवरलैपिंग and this head on overlapping will result in sigma molecular orbital. Whereas the same px, if it is in the plus minus and minus plus position, then what is going to happen, ये जो plus minus है it will repel and this will form sigma star MO, that is sigma anti-bonding molecular orbital. Next one is called as the side-wise. Side-wise में क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है lateral, it's a pz orbital है. This is pz orbital of one atom and this is pz orbital of another atom. तो यहाँ पे we have a sideways overlapping, right? Now in the sideways overlapping क्या होगा, ये प्लस प्लस कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये माइनस माइनस कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ अगर पीपी ओवरलैप होता है तो कौन सा बॉन्ड होगा, कोई बता सकता है मुझे? कोवेलेंट. कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? पाई. पाई बॉन्ड. पाई पाई. बॉन्ड ना, पाई पाई बॉन्ड. बॉन्ड. तो राइट, तो पी जो ओवरलैप होता है, पीपी ओवरलैपिंग जब होती है, देन वी हैव अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये प्लस प्लस और फॉर्म पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लेकिन सेम अगर पीजेड में ऑपोजिट साइंस प्रेजेंट है, प्लस और माइनस वाले लो
ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, then this will ripple and therefore it will form pi star molecular orbital या pi antibonding molecular orbital in pp overlap. Next is the combination of, we can see over here, px. Now suppose we have, जैसे हमने already देखा, ये px है और ये px है. px में दो चीजें हो सकती हैं. अगर प्लस प्लस है तो क्या होगा, px प्लस px एडिशन होगा. एडिशन होता है तो सिग्मा 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में चला जाएगा बिकॉज इट इज लैटरली ओवरलैपिंग, और इट कैन फॉर्म सिग्मा 2p px माइनस px होगा जो सब्ट्रैक्शन होगा एंड देयरफॉर देयर विल बी नोडल पी. सेम वे py जो होता है, आइदर इट कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, देखो अगर ये लैटरल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. अगर ये हेड ऑन पोजीशन में अगर ओवरलैप होती है, हेड ऑन मतलब इस तरह से अगर सिमेट्री में ओवरलैप होती है, देन इट फॉर्म्स द सिग्मा 2p बॉन्डिंग या सिग्मा स्टार 2p बॉन्डिंग, राइट. बट अगर ये लैटरल ओवरलैपिंग में होता है, देन इट विल फॉर्म पाई 2p बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. फाइन. तो अब तक हमने कितने पॉसिबिलिटीज देखे, कोई बता सकता है? पहला क्या है पॉसिबिलिटी, किसकी का बॉन्डिंग हो सकता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग? हेलो, पहला जो है कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो सकता है? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन Sigma. और नो? हाँ जी, सिग्मा में कौन से ऑर्बिटल, पहला हमने कौन सा ऑर्बिटल का देखा? S. एस ऑर्बिटल. तो एस ऑर्बिटल कौन सा बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं? 1s 2s 2p, ये देखा. फिर दूसरा चीज कौन सी देखी हमने? sp. sp देखा, बराबर. s एंड p also कैन फॉर्म बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल. sp के बाद कौन सा? sp में क्या होगा, s स्फेरिकल है और p कैसा रहेगा? p की सिमेट्री कौन सी रहेगी अगर वो s के साथ Dumbbell. कंबाइन करना है? सॉरी, डम्बेल. हाँ डम्बल शेप में रहेगा, लेकिन एक्सिस कौन सा रहेगा? Spherical. X. X X-axis. X axis रहेगा ना. X axis can combine with the s orbital which is spherical. तो sp का जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म कर सकता है. तो हमने sp देखा, उसके बाद कौन सा देखा? PP. pp में कौन सा है ओवरलैपिंग? हेड ऑन पोजीशन में है या लैटरल पोजीशन में है? Head on. हेड ऑन पोजीशन में है. तो Lateral. हेड ऑन पोजीशन में होता है. इन केस पीपी अगर हेड ऑन है तो एक्सेस कौन सा रहेगा? X. Y. एक्स एक्सेस. px और px देखो हमने देखा px और px जो है वो कंबाइन करता है, ओवरलैप करता है, क्योंकि इन दोनों की सिमेट्री सेम है px और pxp. तो आइदर वो ऐड होगा या रिपल होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, px और px. and this px and px will form sigma bonding या sigma anti bonding. लेकिन अगर py और py है तो py कैसे ओवरलैप करेगा? हेड ऑन पोजीशन में या लैटरल? Lateral. लैटरल में है ना. इस तरह से हम देखें ना, लैटरल, ये दोनों लोब्स कंबाइन होंगे और नीचे के दो लोब्स कंबाइन होंगे, इनकी सिमेट्री पी वाई एक्सिस पे रहेगा. तो इट विल फॉर्म आइदर पाई 2p बॉन्डिंग या पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2p एंटी बॉन्डिंग, राइट. तो और एक क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए. तो क्या है सिग्मा बॉन्ड? It is formed by the end-to-end overlap of orbitals. तो इतना आपको याद रखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है?
बोलो। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है, अरे बोलो। Sharing of electron. अरे शेयरिंग ऑफ Sharing of इलेक्ट्रॉन, electrons. which orientation? End-to-end overlap of orbitals. Very good. I am asking that end to end overlap orbitals होता है, वो अगर SS का भी हो या PP का भी हो तो हम ऐसे मत सोचते कि P मतलब पाई बॉन्ड, ऐसे नहीं। अगर वो SS भी हो या SP भी हो या PP भी हो, it can form, if it is end to end overlap, it will form a sigma bond. तो पाई बॉन्ड कब फॉर्म होगा? इट इज फॉर्म बाय द लैटरल ओवरलैप, मतलब साइडवेज से जब अट्रैक्ट होते हैं, देन इट विल फॉर्म अ लैटरल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। तो सेकेंड पॉइंट है, द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन द ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड कब कब फॉर्म होगा? एस एस है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। एस पी है तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? सिग्मा बॉन्ड। पी पी है, पी एक्स जैसे हो, अगर हेड ऑन पोजीशन में आते हैं, देन इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। वेयर एज पाई बॉन्ड का फॉर्म होता है, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ पी पी ऑर्बिटल्स ओनली। यहाँ पे एस तो मौजूद ही नहीं होता पाई ऑर्बिटल्स में। पाई ऑर्बिटल्स में पी वाई और पी जेड विल हैव लैटरल ओवरलैप। पी एक्स भी हो सकता है, अगर वो लैटरली है तो पी एक्स भी हो सकता है। हमने एक को सिग्निफाइड किया है कि पी एक्स को हमने अगर एंड टू एंड करते हैं तो पी वाई और पी जेड विल फॉर्म पाई बॉन्ड। नाउ सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये मैक्सिमम ओवरलैप में होता है ना? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मैक्सिमम ओवरलैप करते हैं, तो इसके वजह से ये जो बॉन्ड होता है फॉर्म, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। वेयरएज पाई बॉन्ड जो होता है वो लैटरली बहुत दूर दूर से खाली वो कनेक्शन होता है, दैट इज व्हाई इट इज फॉर्म एज अ वीक बॉन्ड। The electron cloud is symmetrically about the line joining the two nuclei. The electron cloud जो form होता है because of the sigma bond is symmetrically, sir, चारों तरफ हमें वो जो cloud बनता है तो वहां पे जो nucleus है वो completely joining होती है, and pi bond में the electron cloud is not symmetrical. Sigma bond में it consists of one electron cloud which is symmetrically about the intranuclear axis, और पाई बॉन्ड में there are two electron clouds lying above and below the plane of the atomic nuclei. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सिग्मा बॉन्ड में completely इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो फॉर्म होता है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है? हमने देखा दो लोब्स होते हैं, ऊपर होते हैं और नीचे रहते हैं। तो there are two electron clouds lying above and below the plane of the atomic nuclei. जैसे हमने देखा बेंजीन में रिंग स्ट्रक्चर जो है, ऊपर एक रिंग क्लाउड रिंग और नीचे क्लाउड रिंग फॉर्म होती है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कैन मूव easily in that electron cloud area in the sigma bond, whereas rotation is restricted in case of pi bond. pi bonds में उतनी flexibility नहीं रहती, right? So as we can see how the molecular orbitals are filling, अगर हमें molecular orbitals fill करना है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं in the order of increasing energy. तो जैसे हमने देखा हाइड्रोजन में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स था वो पहला एनर्जी लेवल कौन सा था, कोई बता सकता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद पहला जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहता है वो कौन सा रहेगा? यस स्टूडेंट्स, जब हमने हाइड्रोजन का देखा ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाँ, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो पहला जो ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? सिग्मा 1s फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद जब कंबाइन करेंगे s ऑर्बिटल तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? बॉन्ड कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। सिग्मा तो भी सिग्मा आपको बताता है कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा और कौन सा ऑर्बिटल है, तो 1s ऑर्बिटल। तो सबसे पहला जो रहेगा वो सिग्मा 1s ऑर्बिटल।
मॉलिकुलर ऑर्बिटल। फिर उसके बाद आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद रहेगा सिग्मा 2s, फिर उसके बाद रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद नेक्स्ट है सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। अभी इज इक्वल टू मतलब ये दोनों जो है px एंड py दे आर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिट मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग सिमिलर एनर्जी। तो इसके लिए हम इक्वल टू साइन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, then it is less than pi antibonding 2px which is equal to pi antibonding 2py and which is less than pi star 2pz। तो इस तरह से एनर्जी लेवल से मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की, जैसे हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 1s 2s 2p 3s 3p के बाद 4s फिर 3d सो ऑन, तो सिमिलरली मॉलिकुलर ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल का डायग्राम है वो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स इन ऑन द बेसिस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज-रुल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस तीनों प्रिंसिपल से ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है, राइट। तो हमने ऑलरेडी देखा है ये तीनों प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। नाउ एज वी कैन सी, अगर हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, मतलब ये मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लेस किए हैं और ये मेरे इसके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स ये टेबल में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1sa एटॉमिक ऑर्बिटल है और 1sb एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस साइन में कंबाइन करते हैं, तो मुझे कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेगा बताइए। 1sa plus 1sb, which molecular orbital I will get? Yes, बोलिए fast. Sigma 1s. Sigma 1s, very good. तो 1sa plus 1sb ये दोनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, दैट इज सिग्मा 1s। सिमिलरली मेरे पास 1sa माइनस 1sb, तो ये कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा? सिग्मा स्टार 1s। Sigma star 1s. I hope you are understanding. 2sa plus 2sb, it will form what? सिग्मा 2s। Sigma 2s. Same way 2sa minus 2sb will form sigma antibonding 2s. 2pza plus 2pzb will form what? सिग्मा 2pz। Sigma 2pz, because head on position पे 2pza और b add हो रहा है। 2pza minus 2pzb will form what? Which molecular orbital? Sigma antibonding 2pz. Similarly, 2py, okay, plus 2pyb, it will form what? Which molecular orbital? पाई। pi. देखो अभी ना Pi. जैसे हमने पहले देखा था 2px को हमने सिग्मा दिया था, डेसिग्नेट किया था कि x ओवरलैप हो रहा है। यहाँ पे ये डायग्राम में, यहाँ टेबल में क्या बता रहा है मुझे बताओ। p में सिग्मा बॉन्ड को कौन फॉर्म करेगा, कौन कर रहा है यहाँ पे? z वाला। तो यहाँ पे z को हमने सिग्मा दे दिया है और x y को क्या दिया है? पाई बॉन्ड दे दिया है। तो इट इज नॉट फिक्स कि px ही बनेगा सिग्मा। तीनों में से अगर कोई भी लैटरल हेड ऑन पोजीशन पे आता है उसकी सिमेट्री, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इन दिस वे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे pz को जो है वो हेड ऑन पोजीशन में दिया है, इसके लिए सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz बताया है। नेक्स्ट है 2pya प्लस 2pyb, ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा? यस,
2pya plus 2pyb, ये कौन सा pi to ऑर्बिटल? py. पाई 2py, क्योंकि ये लैटरल ओवरलैप कर रहा है, इसके लिए पाई 2py. 2pxa plus 2pxb, again this will position will Pi form to pi px. 2px, pi 2px. 2pya minus 2pyb, माइनस है तो एंटी बॉन्डिंग रहेगा, Pi antibody. pi anti bonding 2py, and 2pxa minus 2pyb, 2pxb, this will be pi anti bonding 2px. I know this will be a new concept, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे देन यू विल अंडरस्टैंड इन अ मोर बेटर वे. ठीक है, तो इसका आगे जो है हम अभी अटेंडेंस भी लेना है, तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. Maybe tomorrow, that is Saturday, if I get time, or maybe in the evening, maybe 4 to 6 ऐसा कुछ मैं लेक्चर रखना चाहूंगी ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट. 2 घंटे में चैप्टर कैन बी